It is so difficult to climb. Namaste everyone and welcome back to the channel. So finally I have reached Pathankot and I'm with my host who is there, and he is an Ayurveda doctor. His name is Dr. Vinesh. So guys, here is my host Dr. Vinesh. Hello. And he is going to tell us where he's going to take me. Now we are going to Mukteshwar Dham. It's a holy place for Lord Shiva. Okay. And best place in Pathankot. Pathankot to visit. Okay. Now we are going to explore it, and she's going to tell you. Yeah, you will get to know through my Yeah. vlog. So guys, this is how Pathankot looks. You can see the roads. If you want any, medical advice, you can ask Dr. Vinesh. Yeah, sure. Yeah, and I'll share his Instagram ID in my video description. You can check it out. He's also a very nice photographer. He's from Himachal Pradesh. So you can follow his account for travel inspiration. And Pathankot shares the border with Himachal Pradesh and Jammu Kashmir. So right now we are going towards Ranjit Sagar Dam, and we are not going to go inside because you need to apply in advance, 2 week advance. So I'll try to show you the view of that dam from close. We'll see how I can show you that. Guys, look at the view, it's so amazing. The road looks so beautiful. Wow, and we are going on neutral. We are saving the petrol. We are saving petrol, guys. Wow, so beautiful. So right now we have stopped over here. We don't know the name. I don't know the name. If we'll go to Ranjit Sagar Dam side, we will pass through this bridge only. So if you want, you can stop over here. See how beautiful it looks. This is so amazing. Guys, whenever you are traveling, you have to find hidden gems of that place that no one can, tell you. Wherever you are going, you should make it, your each journey memorable. You should go there, you should find it, try to go inside. Wow, this is so beautiful. Look how amazing it looks. So nice. I think I should take time lapse over here because that will look so incredible. Wow, and these stones are so amazing. Wow. So I'm crossing this water. Oh my god, this water is so chilled, but it is amazing. The feeling is so great. Wow.
now we saw some guys. We are going to have a chit chat with them. We'll ask the name of this bridge from them. They are looking at us. This is so incredible. See? Wow. I love this kind of place. It feels like I'm in Himachal. Crossing this small water rivers. ये एडिट कर देना जो मैं बोल ब्रोट में जाओगे ना आप तो वहाँ पे टेम्परेचर जो होगा पानी का वो नियर टू फ्रीजिंग है। ओके। जो मेरा शायद आपने डीपी देखी होगी, मैं ऐसे बैठा हूँ चेयर पानी के बीच में लगा के, वो सिर्फ फोटो खींचने के लिए। अच्छे। हम शर्त लगाते हैं जो इसमें 10 सेकंड तक खड़ा रहेगा 2000 रुपये इनाम। अच्छे। नियर टू फ्रीजिंग, मतलब कोई खड़ा नहीं रह सकता। See guys, this and it is so incredible. See how beautiful this place is. But there are so many stones. You have to watch your steps. So finally, adventures with Snigdha. So yeah, guys, they are cleaning some utensils. And they are so happy to see us. Jugyal na? So guys, finally I got to know the name of this bridge. You can see it's called Jugyal Bridge. So whenever you are going to Ranjit dam side, you will cross the Jugyal Bridge and then you can come over here if you are interested. This is so beautiful. So finally, this amazing visit. We are leaving this place. It is so beautiful. Bye guys, bye. Thank you for telling me the name of this bridge. It was so nice. Adventures with Snigdha. Bye bye. Oh my god, this place is gem. This Jugyal Bridge is amazing. Don't miss to visit Jugyal Bridge whenever you are in Pathankot. Ooh, it's a little adventure. It is going to be small adventure for you, but you will love it. Oh my god, this is how travelers, they find their hidden gem wherever they are traveling. They just look for these kind of places. Wow, this is so beautiful. Oh my god, you know, I cannot express my feelings in words because I'm loving this. Wow, see, and the bushes, they look so beautiful. Wow, now I have to climb on top. I have to go there. Actually the bushes na, they are increasing the beauty of this place. Oh my god, I have to watch my steps, otherwise I'll fall down on these heavy stones. Okay. Oh, finally I've crossed. You know, this kind of things and views gives me a hell lot of happiness. This is what I like to do, but I was not getting that in Punjab. Finally I got that in Pathankot. It's amazing. So guys, after doing a little bit of off-roading, we are going towards Mukteshwar temple that you will see in few minutes. You know, this place is so peaceful that you don't need any, it is pollution free, I can say, if I want to put in that way.
and it is so beautiful. You don't need AC or anything. You can get the natural breeze over here. This natural breeze is so amazing and so chill. See the roads. See? Over there, if you can see. So nice. Finally, we have arrived at Mukteshwar temple. We have to climb down. Wow. The steps were so big. I came from there. Can see. Yeah. Oh my god. Now we are entering Mukteshwar Dham, first cave. It is believed that these are made by Pandavas during their exile of 14 years. First we have to take permission, then we are going to. Guys, this is the cave made by Pandavas. This is the shivling. Now I am going to worship it. Now we are entering to Pandav Dhyan Kaksh. These caves are made by Pandavas during their exile. You can see these. These are modified by archaeological department to preserve them. Guys, see this. Can you believe these are made thousands of years back? While we having no tools, no machinery. Guys, now I am going to cover third one. I think this one is the most important. As you can see, the mountain and the cave in it.
I believe that Pandavas just came to worship Lord Shiva. You can see the shivling and everything. So guys, this is the Mukteshwar Dham. As you can see, it's in the situated in the mountains. एक्चुअली पढ़िए मैं हिमाचल से हूँ तो मैं तो जानता हूँ कल्चर वगैरह ये जय भोलेनाथ की जय मुक्तेश्वर धाम। तो ये पंजाब घूमने आए थे। लास्ट स्टेशन इनका पठानकोट था तो इन्होंने पूछा कि पठानकोट में क्या देखा जाए। तो मैंने कहा कि मुक्तेश्वर धाम के अलावा पठानकोट में और ना शांति वाली जगह है और ना कोई धार्मिक मतलब मेरे नज़रिए से कुछ जी ऐसा है। जी तो मैं इन्हें लेके आया यहाँ पे, लेकिन यहाँ के बारे में विस्तार में मेरे को भी उतनी जानकारी नहीं है जितना आप दे सकते हैं। आपको बताता हूँ यहाँ का जो जानकारी है हमारे को, जो यहाँ की स्टोरी है वो बताता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि सनातन हमारा जो है, सनातन में हमारा कोई भी चीज़ बनाया हुआ नहीं है। हमारे में अगर रामेश्वर बताते हैं तो रामेश्वर है, ग्रंथों में भी है, और मुक्तेश्वर बोलते हैं, महाकलेश्वर बोलते हैं तो वो भी है। आपका हिमाचल में भी महाकलेश्वर है। तो इसी तरह ये मुक्तेश्वर है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के उत्तराखंड के 16 नंबर अध्याय में है। इसको छोटा हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। ये 5,500 वर्ष पुरानी है। ये द्वापर में पांडवों ने वनवास के लास्ट पीरियड में बनाया था। पठानकोट से ठीक 20 किलोमीटर दूर रणजीत सागर डैम के पास गांव डूंग के बीच में ये मंदिर स्थित है। यहाँ पर पांडवों ने 5 गुफाओं का निर्माण किया और भगवान शिव की जागृति की। जैसे आपको मालूम होगा कि पांडव जो थे, पांडव के संग में एनी टाइम भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने जहाँ भी आराधना किया शिव जी का ही आराधना किया पांडव ने। जैसे यहाँ पर भगवान शिव की आराधना किया उन्होंने, भगवान शिव ने जहाँ पर दर्शन दिया वहाँ उन लोगों ने पिंडी की स्थापना कर दी, जिसका नाम मुक्तेश्वर है। और यहाँ पर उन्होंने बड़ा हरिद्वार का निर्माण किया था। उस वक्त हमारे लिए 6 महीने उनकी एक रात थी, पूरी रात लग जानी थी तो बड़ा हरिद्वार बनना था। ये छोटा हरिद्वार है, इसको मिनी हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। और जो मुक्तेश्वर धाम के चरणों में नदी बह रही है, इसका नाम रावी नदी है। एरावती भी है, क्योंकि इसका 2 नाम है। घर का कुछ और नाम होता है, स्कूल का कुछ और नाम होता है, इसी तरह इसका भी 2 नाम है। ये रावी नदी शिव जी के चरणों से मणि महेश कैलाश से आ रही है, जिसमें लोग स्नान करते हैं। यहाँ पर पांडवों ने 5 गुफाओं का निर्माण किया और भगवान शिव की जागृति की। 5 भाइयों की अलग अलग पूजा वाली कक्ष है। मैन गुफा जहाँ पर है, जहाँ पांडव का हाथों का शिवपिंडी स्थापना है। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज का धूना है। द्रौपदी मैया की रसोई है। पांडव का हाथों का बना हुआ भैरवनाथ है। कमला देवी है और 9 देवी हैं। और ऐसे भी बहुत कलाएँ हैं जो आपको देखने को मिलेगा गुफाओं के अंदर। और यहाँ पर धर्मराज की पदवी युधिष्ठिर महाराज को मिली थी, जिसका धूना अभी चल रहा है, वो अखंड धूना है। जैसे जब से धूना मिला है, जब से चलते हुए मिला है और आज भी चल रहा है। लकड़ी तो डालनी होती है उसमें, लेकिन धूना चलते हुए मिला था, वो वैसे चल ही रहा है आज तक। यहाँ पर पांडवों ने 5 गुफाओं का निर्माण किया और भगवान शिव की जागृति की। भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया और विजयी होने का वरदान दिया। इसका नाम मुक्तेश्वर धाम है। सबसे बड़ा खासियत ये है कि यहाँ पर पांडवों ने युद्ध में विजयी होने का वरदान प्राप्त किया भगवान शिव से। और यहाँ पर अस्थियाँ भी प्रवाहित करते हैं, पितरदान भी करते हैं और पिंडदान भी करते हैं। और यहाँ पर हर एक का स्नान होता है, या अमावस का हो, या मत्स्या का हो, या तो संक्रांति का हो, या पूर्णिया का हो, या पूर्णवासी का हो, या आपको जो भी स्नान आए यहाँ पर होता है। और फरवरी मार्च अप्रैल में आपको यहाँ पर बहुत बड़ा मेला होता है, जो आप भी आके देख सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। शिवरात्रि के पूरे 1 महीने बाद 3 दिन का मेला आता है। जैसे अगर मान गया कि शिवरात्रि ये 2 तारीख को है, 2 फरवरी को, तो 2 मार्च को आप आ जाओ। 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 3 दिन मेला मिलेगा आपको।
3 दिन आप रह भी सकते हैं, रुक भी सकते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, बहुत दूर दूर की दुनिया आती है। शिवरात्रि में कम से कम 2.5-3 लाख दुनिया होती है और यहाँ पर जो भी लोग मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। हर एक पूजा कराई जाती है, रुद्राभिषेक भी कराया जाता है, कालसर्वयोग की भी पूजा होती है। यहाँ पर पंडित जी भी विराजमान है। मैं यहाँ का महंत हूँ। हाँ जी, मैं यहाँ का महंत हूँ और यहाँ पर पंडित जी हमारे जो है शास्त्री साहब वो अंदर हैं। उनसे भी आप कोई राय लेना होगा या कोई कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये रावी नदी है। यहाँ पर सुबह 10 बजे लंगर शुरू होता है और रात के 10, 11, 12 बजे तक हम लंगर लोगों को खिलाते रहते हैं। जैसे आप लोग आए हैं, आप लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ चाय का भी सुविधा है, लंगर का भी, रहने का भी सुविधा है। अगर किसी को दिक्कत हो गया रहने के लिए तो यहाँ रहने का भी सुविधा है। आप कितने सालों से मेरे को कोई 26-27 साल हो गए। जैसे हमारे सनातन धर्म में होता है कि अखाड़ों से बिलोंग, तो आप हम लोग जूना अखाड़े से हैं महाराज। कि मैं जानती हूँ हिमाचल में जोगिंद्र नगर बैजनाथ, बैजनाथ, हाँ जी, बैजनाथ वाले बाबा जी आते हैं। हाँ जी, वो भी जूना अखाड़े के हैं, कभी आते हैं महाराज जी हमारे बाका में। हमारे को कोई संत है कि नहीं जानता, नहीं तो जितना बड़ा बड़ा मंदिर है अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, सभी लोग जानते हैं और सभी जगह से दुनिया यहाँ आती है। यहाँ तो आपको हिंदुस्तान का हर एक कोना के लोग आते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं, उत्तराखंड से भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई धरोहर एक चीज़ है और इसको देखने के लिए जैसे जैसे लोग नेट पर देख रहे हैं उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये हमारे शास्त्री साहब हैं, कुछ इनसे पूछना चाहते हैं कि इनसे भी पूछ सकते हैं। इनके भी भाई साहब एक हिमाचल में हैं, 2-3 भाई हिमाचल में और ये पंजाब में। आप लोग कुछ पूछना है तो इनसे भी पूछ सकते हैं। जय भोलेनाथ की जय, मुक्तेश्वर। जहाँ का इतिहास जो है सब बता देंगे। बाबा ने बाकी तो बता दिया। बता ही दिया। आज से 5,500 साल पहले द्वापर युग में पांडवों को जब वनवास हो गया था 12 साल का, तो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए 12वें साल के लास्ट में जहाँ पहुँचे, 6 महीना जहाँ रुके, जब तक किया 5 गुफाओं का निर्माण किया। वो जहाँ हम बैठे थे वहाँ वो एक ही गुफा है। हाँ, मेरे पास जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ युधिष्ठिर जी महाराज की गद्दी है और वहाँ उनका अखंड धुना है। और जो मेरे पीछे थी वो द्रौपदी माता नाम से रसोई थी, सामने मंदिर था। तो 3 गुफा जहाँ ऊपर है, 2 देखने को मिलेगी, एक को भंडार कक्ष में परिवर्तन कर दिया हमने। और 5वीं गुफा जो थी वो बड़े पहाड़ के पीछे दरिया के बीच डूब चुकी है, समा चुकी है, खंडित हो चुकी है। ये मुक्तेश्वर धाम है। इनको मुक्ति का धाम भी कहते हैं। इनको जहाँ मिन्नी हरिद्वार भी कहते हैं, छोटा हरिद्वार, जहाँ अस्थियाँ विसर्जन भी होती हैं और पितरों का पिंडदान भी जहाँ होता है, हर मत्स्या पर, श्राद्ध पर, तीर्थ पर, वैसाखी पर। यहाँ रहने की भी सुविधा है, जहाँ हर समय लंगर है। और सबसे विशेष बात, भगवान शंकर जी ने जहाँ पांडवों को जीत प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उसके बाद ये रावी नदी पार करके राजा विराट की नगरी जम्मू स्टेट में चले गए। अखनूर चिनाब नदी के ऊपर 1 साल का जो अज्ञातवास था उनको उन्होंने वहाँ काटा था। बोल शंकर भगवान की जय। ये जो सामने पहाड़ी है ये जम्मू, हम जहाँ बैठे हैं पंजाब। ये जो सब घर नजर आ रहा है, अगर आपको फोटो खींचना है, रास्ता बना हुआ है, जा सकते पार। अभी जहाँ से नीचे रास्ता बना दिया हमने, वो देखो। हाँ, पहले नहीं था। हाँ, पहले नहीं था, तो वो आप जा सकते हैं। पूरे ये जम्मू से आ रहे हैं भाई जी। अच्छा। ये इनका घर वो है सब। Now we are leaving Mukteshwar Dham and we have to climb up that much, and it is so difficult to climb with camera in hand. So that is Ravi River. So guys, I'll see you in some time. Fully exhausted. Oh, it's very tiring. So guys, finally we are leaving Mukteshwar Dham, and whenever you are in
Pathankot. Don't forget to pay a visit to this religious site. You'll find so much peace over here. Oh my god, this cool breeze, it's amazing. So we have finally reached at Ranjit Sagar Dam viewpoint. You can see there, it's written. And now I'm going to show you, you cannot go inside without permit. To visit inside you need permit. But you can view from outside, you will get the best view from here. So that's the dam, that's Ranjit Sagar Dam. See how it looks. So guys, after showing you the Mukteshwar Dham and Ranjit Sagar Dam, I'm going to end my today's vlog over here, and I'll see you in the next vlog. Till then, take care of yourself and stay safe.